Friends, we have Claire Sethi with us. So we are at Hotel Meridian, so the International Women's Day was celebrated. So what do you want to say? This is 2024. So what's new? What's the challenges? I think the challenges remain pretty much the same. There are very few challenges that we've been able to tackle completely. However, this year it was very nice because I was able to push through and have a discussion on a topic which I've been wanting to since a very long time. I think it was very unfortunate that the wrestlers were forced to vacate and stop their protest. And it's a small gesture. It's just a way to tell them that we haven't forgotten about them. We haven't forgotten about the travails and the travesties that women go through. And also, it was so nice to have the LGBTQ community join us this year because inclusion cannot come by excluding any one gender. So, I'm very happy. Perfect. Ambulances in hospitals save over 5,000 animals each day. Her law book is taught in universities and used as the only guide for courts on the subject of animal welfare. She has prepared meticulously the intellectual and physical framework for animal welfare in India. With an admirable track record of being an 8-term member of 8 Parliament, Mrs. Menga Gandhi adds another significant milestone in an illustrious political career that of being India's senior-most parliamentarian. A veteran politician, she has been a minister in 4 governments who has adaptively navigated the Indian political system to build a formidable reputation as a legislator and administrator. At the end of it, there is a feeling of satisfaction that every woman feels when she achieves something. And I'm happy that we have been able to make the world, not the world, make this country more compassionate. When I started out, it was seen as something that little old ladies did to protect animals, or rich women who had nothing better to do, or widows who had nothing better to do. And now there is an animal feeder on every street in India, and aggressive young people, of which 70% are women. And that's what I'm so proud about. They get harassed, they get beaten for just being good to animals. And yet they stand their ground, they go to the police, they make sure that any incident of harassment does not happen a second time. Thank you again. मान लो कुछ भी होए, मान लो आप दोबारा ओलंपिक में जाओ, मान लीजिए 4 साल इस ओलंपिक में ना जाओ, अगली ओलंपिक में जाओ, तो आप क्या अपनी ट्रेनिंग वगैरह जारी रख रही हैं कि कोई गुंजाइश है कि आप फिर से कोई मेडल के लिए ट्राई करोगे या कुछ, या क्या आपने हमेशा के लिए रेसलिंग छोड़ के अब एक्टिविज्म का रास्ता उठा लिया है? लोगों का सपोर्ट आया, मैसेज आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर यही सिस्टम रहता है तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं मोटिवेट ज़रूर करती रहूँगी। मैं चाहूँगी, मैंने मेडल जीत लिया है और 1 साल सेना 1 साल से भी ऊपर होने वाला है, ट्रेनिंग ढंग से नहीं है, मेंटल प्रेशर है, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हर तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके इस काम को सफल बना पाएँ। तो मैं तो वापस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो मेरी जूनियर्स हैं, मैंने ओलंपिक मेडल का एक्सपीरियंस लिया, मैंने भारत का नाम रोशन किया, जो मेरी जूनियर्स हैं, मैंने ब्रॉन्ज जीता, मैं चाहूँगी वो आगे आने वाले ओलंपिक्स में सिल्वर जीते, गोल्ड जीते, क्योंकि मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है करने को, मतलब बहुत कुछ दिया भगवान ने, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रखती हूँ उस चीज़ का, और मैं चाहूँगी कि मेरी भारत की हर एक बेटी, हर एक महिलाएं आगे बढ़े, तो मैं अपना मौका उनको देना चाहूँगी। मैं सिर्फ उनका सपोर्ट करूँगी कि मेरी रेसलिंग क्लीन हो और उनको रास्ता क्लियर मिले। मिस लहर, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पूरे समाज को एक नया मैसेज मिल पाए? देखिए, सिर्फ विमेंस डे सेलिब्रेट करने से नहीं होता है। साल में एक बार 8 मार्च को सबको याद आता है कि औरतें भी इम्पॉर्टेंट है। हमें पूरे साल ये याद रखना है कि औरतें इक्वल हैं, उनको अपना डिसीजन खुद लेने दें। छोटे होते से जब वो बच्चे हैं, जब आपका चाहे बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो, आप उनको इक्वालिटी दिखाइए अपने घर में।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की जो बहू है या आपकी जो बीवी है वो बाहर जाके पैसा कमाए, तो आप भी घर में उनको मदद करें। घर का काम आपको भी सीखना ज़रूरी है। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको एक इक्वल अपने दोनों पेरेंट्स को देखेंगे तभी सीखेंगे, उनको ऐसे बोलने से नहीं हो पाएगा। तो विमेंस डे पे हमें ये याद रखना चाहिए। लहर, जैसे कि आप निर्भया केस के बारे में और अभी जो हाल फिलहाल के अंदर आपने हाथरस का केस देखा, क्या स्पेशल मैसेज इस गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, आप समाज को देना चाहेंगे, ताकि ऐसे केस हमारे वुमेंस के साथ इन फ्यूचर कभी भी ना हो? देखिए, मैं तो इस गवर्नमेंट को क्या ही कहूँगी। बृजभूषण शरण जी को प्लीज़ टिकट ना दीजिए। आइडियली वो जेल में होने चाहिए, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे उनको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद में जेल में वापस डाला गया है। और उनके खिलाफ जो गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कोर्ट ने बोला वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट करा, कोर्ट को बोला कि उसको हटा दिया जाए। तो मुझे इस गवर्नमेंट से बहुत ही कम उम्मीद है, लेकिन हाँ, लोगों से उम्मीद है। और मुझे लगता है लोगों को प्रेशर डालना पड़ेगा, ऐसे लोगों को वोट ना करें, ताकि समाज में नई एक हाँ क्रांति जी, आए। ताकि ये क्रांति नहीं है, ये बेसिक डिसेंसी है। Basic ऐसे decency। लोगों को चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, ये ना सोच करके जेल में होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।